والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء فخر الأنبياء إمام الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يؤتيك ربك فترضى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدنا سهلنا أشكالنا إمدادكم عزیزان گرامی قدر مکاشفۃ القلوب کے اندر حضرت امام غزالی نے یہ کتاب لکھی جس کے پہلا باب شروع یہاں سے ہوتا ہے. میرا آواز نہ کرے، میں آتی نہیں لیکن ان بنا رہا سیٹ کر. مکاشفۃ القلوب کے اندر پہلا باب امام غزالی جس کا نام ہے خوف و خشیت الہی. ہر گھر کے اندر رکھو. مجھے خوشی ہے کہ اماں جی ہمارے بزرگ اس وقت اندر باپردہ سن رہے ہیں. یہ آئین شریعت کے مطابق محفل ہو رہی ہے. خواتین کچھ میری بہنیں دور دراز سے بھی جو اپنے گھروں کے اندر آباد ہیں اس محفل کے لیے، مجھے پتہ چلا کہ وہ اس محفل کے لیے اپنے سسرال سے آتی ہیں. مکاشفۃ القلوب کے اندر امام غزالی لکھتے ہیں پہلا باب خوف خشیت الہی. فرماتے ہیں اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا. آغاز مکاشفۃ القلوب کا یہاں سے ہوا، توجہ سے سنتے جاؤ. اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کا ایک پر مشرق میں ہے ایک پر مغرب میں. بلکہ یوں کہیے کہ اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، ایک بازو مشرق کے اندر ہے ایک بازو مغرب کے اندر ہے، اور اس کے پر کتنے ہیں جتنی اللہ کی تخلیق کی ہوئی مخلوق ہے. اور جب نبی پاک کی امت میں سے من ذکر او انثی کوئی مرد یا خواتین درود پڑھتے ہیں نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم پر، خالق اسے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتے عرش کے نیچے نور کا سمندر ہے، اس میں غوطہ زن ہو جا. غوطہ زن ہو کے وہ فرشتہ باہر آتا ہے. خالق کیا حکم ہے؟ فرمایا اپنے پروں کو ذرا جھاڑ. توجہ کرو توجہ کرو. پر کتنے جتنی خالق نے مخلوق تخلیق کی ہوئی ہے اپنے پروں کو جھاڑ. وہ تخلیق کی ہوئی مخلوق کے مطابق اپنے پروں کو جھاڑتا ہے. پروں کو جھاڑنے سے نور کے قطرے گرتے ہیں. ان قطروں سے خالق ہر قطرے سے ایک فرشتہ بناتا ہے. فرشتے کھڑے ہو کے کہتے ہیں لبیک یا اللہ. حکم خالق فرما کیا ہے؟ فرمایا میری نبی کے امت کے کسی بندے یا بندی نے میرے نبی پہ درود ایک مرتبہ پڑھا ہے. تم سارے فرشتے لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتے بنے، تم سارے فرشتوں اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرو. دعائیں مغفرت کرو. جی کروانی جی درود نہ پڑھی لوگ میرے نال پڑھو گل لگی چلتی. صلی اللہ
खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व ज़मान रब्बी लम यज़ल रब्बी काबा रब्बी कायनात रब्बी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद अर्ज़ां बेशुमार लातदार दरख्तों के पत्तों के मुताबिक, सूरज की शुआओं के मुताबिक, रेत के ज़र्रों के मुताबिक, हर जी मखलूक रूह मखलूक की सांसों की तादाद के मुताबिक, कुरान के हरफों के मुताबिक तादाद के मुताबिक दरूद उस नबी के ऊपर जिसकी शान ये है, महबूब रब्बिल मशरिकैन वल मगरिबैन जद्दल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबील कासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व जुदिहि व कमालिहि व बारसे कुल्ले खालिक। बला तमहीद, खुश किस्मत वो ज़बान होती है, खुश किस्मत वो ज़बान होती है जो ज़िक्र मुस्तफ़ा करे, जो ज़िक्र मुस्तफ़ा करे, ज़िक्र खुदा करे, ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे। हमारे मुँह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे। दरे रसूल पे कभी ये नहीं देखा, दरे रसूल पे कभी ये नहीं देखा कि कोई सवाल करे और ये अता न करे। शुरू से खुश किस्मत कौन सी ज़बान है जो ज़िक्र मुस्तफ़ा करे। बद वो ज़बान है, बद वो ज़बान है जो ज़िक्र मुस्तफ़ा, बोलो डरो नहीं शुरू ना करे। जो बद वो ज़बान है, खुश किस्मत वो ज़बान है जो ज़िक्र मुस्तफ़ा करे। बद वो ज़बान है जो ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, और बदतरीन वो ज़बान है जो ज़िक्र मुस्तफ़ा से रोके। बदतरीन वो ज़बान है कि बदतरीन ज़बान वाले लोग जब ये दिन आते हैं ना, जब ये दिन आते हैं तो फिर की कहणगे कि मिलाद कित्थे लिखे है। नबी के दौर च मिलाद कोई नहीं सी, सहाबा के दौर च मिलाद कोई नहीं सी, हुण कोई नहीं सी, हुण कोई नहीं सी, हुण कोई नहीं। यही कहते हैं यूट्यूब देखते, फेसबुक देखते, ये मिलाद कोई नहीं सी, मिलाद कोई नहीं सी, मिलाद कोई नहीं सी, तो तू है तेरे बाल कहना पाओ तो तू भी नहीं सही। क्यों जी रफ्तार है, मैं किसी जाना हूँ यार बाबा कादम रिजवी ऐसा अंदाज क्यों लेंदा, फिर मैंने पता लगा कि मैं डॉक्टर हाँ बाज़ औकात वड टुक का काम शुरू हो जाता है। एक वक्त ऐसा होता है कि डॉक्टर को बचाने की कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन फिर कोशिश तो बाद पर रख देंगे, फिर चुरी टोके चलते हैं। हूँ मैं पता चलिया कि मौलवी कादम रिजवी क्यों बोलता है, अरफान शाह क्यों बोलता है। बात है जी मिलाद कोई नहीं, तो मेरा दिल करता है इन्होंने विहड़े च मिलाद साबित कर छड़ा। जब कोई चीज़ खरीदते हैं ना तो क्या मैंने तो ब्रांड पूछ लो, दवाई लेते कहते डॉक्टर चंगा होना चाहिए, मौलवी सदे को मौलवी चंगा होना चाहिए। इन्होंने मैं पूछया, मैं शाह वली उल्लाह के बारे की ख्याल जी, शाह वली उल्लाह के बारे की ख्याल है। कह लगी जी शाह वली उल्लाह को तुसी नहीं जानते, पढ़े लिखे डॉक्टर को। मैं क्या मैं तो बड़िया को जानना, मैं तुहानू पूछण दिया जिन्होंने तुसी जानते, मैं उसकी गल कर। कह लगी शाह वली उल्लाह का बड़ा मुकाम है, हम उसे काबरीन में से मानते हैं। तो मैं क्या अगर शाह वली उल्लाह को ना मिलाद पूछ लीए, दुआनी चुआनी के मौलवी अज के जोड़े जमे ने उन्होंने छड्डो, ब्रांड से छावना चाहिए ना। शाह अब्दुल हक बहादुर देलवी ने पूछो, शाह अब्दुल अजीज बहादुर देलवी ने पूछो, शाह वली उल्लाह बहादुर देलवी ने पूछो कि मिलाद है सी या नहीं सी है। जो शाह वली उल्लाह ने अपना
मिलाद कितने लिखे है, मिलाद थे नहीं, ये नहीं, वो नहीं। शाह वली अल्लाह चंगा तगड़ा मौलवी चंगा आलम है, इन्हों के महकमे च भी असी तो मानते हैं। शाह वली अल्लाह मोहम्मद देवी फरमाते हैं कि मेरे बाप शाह अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हर साल बड़े शानो शौकत से मिलाद मनाते थे, देगा पकाते थे, फिरनियाँ पकदियाँ सन, देगा पकदियाँ सन, अच्छे चंगे तड़े की महफिल होती थी। वक़्त कहते हैं, शाह वलीउल्लाह लिखते हैं, वक़्त एक ऐसा आ गया कि घर में कुछ न रहा, वक़्त आते जाते रहते हैं, घर में कुछ न रहा। उधर से मिलाद आ गई, उधर से शाह अब्दुल रहीम साहब परेशान हो गए, घर परेशानी की आलम में बैठे हैं। इन अल्लाह वालों की बेगबात भी अल्लाह वाली होती है, जब अल्लाह वालों की बेगबात अल्लाह वाली होती है फिर इनसे अल्लाह के वली पैदा होते हैं। जिस तरह के हज़रत साजिद साहब अभी अच्छे अंदाज में अपना भी तारुफ करवाए जा रहे थे, हमारा भी तारुफ करवाए जा रहे थे। तो ये है कि मौसम शाह साहब आज से 10 साल पहले महफिल के अंदर आए, तो इसी तरह मेरी सदारत थी, अब्बा जी हयात थे, बैठे थे, इसके छोटे ने नात पढ़ी, तो अब्बा जी को उसने सैयद ज़्यादा होकर बड़ी मोहब्बत से किया। कहने लगा बाबा जी की आफरीन है कि हो जा पुत्र ऐसे दौर च जमे ने जिन्होंने रब दीन भी दिता है तो दुनिया भी दी है। शाह वली मोहम्मद देवी क्या फरमाते हैं मेराज के बारे में? एक गल लैके जानी है, मैं सारे मौली बना के करना है, मौलियों की फीस लैनी होती तो मैंने भी तुम बन जाओ, बहुत सौखा हो जाए दोनों। शाह वली मोहम्मद देवी फरमाते हैं हालात खराब हो गए, मैं पैदा नहीं हुआ था, शाह साहब अभी पैदा नहीं हुए थे। शाह वली के वालिद शाह अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मैं घर के अंदर मौजूद था, मेरे वालिद शाह अब्दुल रहीम साहब फरमाते हैं मैं घर के अंदर मौजूद था, परेशानी का आलम था। पूछा भाई साहबा ने शाह जी गल की है, कहने लगे नबी की मिलाद आ गई है, पल्ले कुछ नहीं, हुण करिए की? शाह साहब फरमाते ने कि शाह अब्दुल रहीम साहब मेरी जो मोहतरमा सौजा थी उसने थोड़े से चने ये मुरुंडा बनाया, कहने लगी शाह जी पढ़ो मिलाद, शाह जी पढ़ो मिलाद। जो महफिल शुरू हुई है मेरा एक संगी आया सी, अल्लाह रखा 3 साल के कहने लगा सरकारी यारवीं शरीफ आना नहीं कि मैं आ जाऊँगा, मसरूफ हाँ। मैं क्या मैं आना कितने? कहने लगा जी मैं सली जी वेदी को 5 नंबर टी ते 4 नंबर टी शायद कराती है, 4 नंबर टी ते मैं क्या मैं पहुँच गया। हूँ उन्हें क्या अगे झुग्गियाँ लगियाँ ने, इतने आ जाओ, मैं खिलाता हूँ। सुनो गल करना बंदा तू गया इतों मौजूद है मौके का गवाह, मैं चला गया। खोती रेडी सी हूँ उन्हें लोडर रक्षा लिया, तो पिछले उस पे आफरीन है उसके ऊपर पूरे रक्षे की सारे दिन की कमाई 150 रुपया रख के पेट्रोल वास्ते सारा ही ना मिलाते ला के गया। मैं बैठा उस वक्त वारिस खोती रेडी सी होती, उसने खोती रेडी रखी, चादर बिछा दी, मैं बैठ गया, 11वीं शरीफ का खत्म पढ़िया। मैं क्या रखा मैं लंगर तो भज जाना वा, तू लंगर दे सानू, तू सानू लंगर दे। शाह साहब ने मिलाद छोलियां ते पढ़िया, जेड़ा वड्डा मुतबत्ते सुन्नत होवे उन्हें पूछी कितनी बारी जाके झुग्गियां च 11वीं पढ़ के आया? 3 बारी गया। उस कहते खोते की मोह आती है तो इत्थे आती है, इत्थे ना सुन्नत समझे अगर यह भी सुन्नत पूरी करे। अरे छोलियां ने क्या जिन्हें सारे नाथ खाना ते मौलियां इकट्ठे करके मैं छोलियां के मिलाद बनाना, तो घै भी काले जे चिट्टे नहीं, तो सवेरे दसी किन्ने आने मनु सद ने, मैं छोले तेरे होने गुड़ अपना पा देना। शाह साहब फरमाते हैं मैंने चनों के ऊपर मिलाद पढ़ा, रात को इस दफ्तर के अंदर सो गया। सुनो मिलाद में बैठने वालों सुनो, रात को सो गया, सुता इस वास्ते शाह अब्दुल रहीम तेरे छोलियां का उत्थे की बुकत होएगी, उत्थे बिरयानियां होणगियां, उत्थे जरदे होणगे, उत्थे शवारमे होणगे, उत्थे कोरमे होणगे। आप फरमाते ने मेरी सारी अख लग गई, बात नहीं खुल गई।